Hello friends, in today's lecture we will be discussing about few more concepts of place of supply. अगर हम place of supply की बात करें, supply हमारी दो types की होती है, या तो goods में या फिर services में। इस lecture में हम खाली place of supply with respect to goods की बात करेंगे। Place of supply of goods again दो parts में divided है। First, if the goods are supplied within India, and second is when the goods are supplied outside India. When the goods are supplied within India means supplier and the recipient both are in India, and when goods are supplied outside India, it means either the recipient is outside India or the supplier is outside India. So first of all we will start with the domestic supply, which means when the place of supply is within India. The place of supply within India comes under section 10 subsection 1. It is further divided into 5 parts. The first is when the supply involves the movement of goods. Second is when the goods are delivered on bill to ship to model. Third is when the supply does not involve movement of goods. Fourth is goods when the goods are assembled or installed at the site. And the last is when the goods are supplied on a board or conveyance. So let's learn one by one. So first is when the goods involve movement of goods. It comes under section 10 subsection 1 part A. Now movement of goods means जब भी goods supplier के showroom से, godown से या shop से recipient के घर पे, ऑफिस पे या रिसिपिएंट की बताई हुई जगह पे गुड्स जाते हैं तो उसको हम मूवमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं। तो जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होंगे दैट मीन्स गुड्स सप्लायर के शोरूम से निकल के जाएंगे, सप्लायर ट्रांसपोर्ट हायर करेगा या रिसिपिएंट ट्रांसपोर्ट हायर करेगा और ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। दैट मीन्स जहां पर आपकी गुड्स टर्मिनेट होते हैं, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टर जहां पे गुड्स छोड़ता है रिसिपिएंट के पास, उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मिस्टर ए जो नासिक में रजिस्टर्ड है, उनका होलसेल का बिजनेस है फॉर मेकिंग रेफ्रिजरेटर्स, वो रेफ्रिजरेटर्स के होलसेल डीलर्स हैं। मिस्टर बी जो मुंबई में है, उनका शोरूम है मुंबई में और वो मिस्टर ए ऑफ नासिक को 20 रेफ्रिजरेटर्स का ऑर्डर देते हैं। मिस्टर ए 20 रेफ्रिजरेटर्स मुंबई मिस्टर बी के शोरूम तक पहुंचा देता है। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई एंड सप्लायर इज इन नासिक। बोथ आर इन द सेम स्टेट, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंट्रास्टेट सप्लाई and CGST and SGST will be applicable. Let's take one more example. Again, let's continue with the same example. Mr. A of Nasik is a wholesale dealer of refrigerators. Now, Mr. C of Delhi has a showroom in Delhi and he orders 10 refrigerators to Mr. A. Now, Mr. A supplied 10 refrigerators to Mr. C at his showroom in Delhi. Now, the place of supply will be Delhi and in this two different states are involved. So it will be considered as interstate supply and IGST will be applicable. Now let's understand when the goods are delivered on build to ship model. Now build to ship model का मतलब है when the movements of goods are delivered to the recipient on the instruction of third person. यहाँ पे तीसरा पर्सन इंस्ट्रक्ट कर रहा है सप्लायर को कि वो रिसिपिएंट को गुड्स पहुंचाए। Whenever such case is there, then principal place of business of third person will be considered as a place of supply. इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज करो मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी या तो कस्टमर है या एजेंट है या प्रिंसिपल हो सकता है, हम इसको थर्ड पर्सन मान लेते हैं। और मिस्टर सी रिसिपिएंट है। मिस्टर बी मिस्टर ए को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मिस्टर सी को गुड्स डिलीवर कर दे। तो ऐसे केस में जब थर्ड पर्सन सप्लायर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो रिसिपिएंट को गुड्स भेजे, तो इस केस में जो पर्सन इंस्ट्रक्ट कर रहा है दैट मीन्स मिस्टर बी विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी
रिसीवर। दैट मीन्स यहाँ पे ये माना जाएगा कि मिस्टर ए जो सप्लायर है वो मिस्टर बी को गुड्स भेज रहे हैं, तो जहां पर भी मिस्टर बी होगा, लोकेशन ऑफ मिस्टर बी विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन मिस्टर ए नासिक में है और इनका शोरूम है फॉर मोबाइल्स। यहाँ मिस्टर बी दिल्ली का है, वो मिस्टर ए से 10 मोबाइल फोन्स खरीदता है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, और मिस्टर बी मिस्टर ए को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मिस्टर सी जो मुंबई में उसके पास एम्प्लॉय है वहां पर 10 मोबाइल फोन डिलीवर कर दे। तो यहाँ पे मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर सी के पास मोबाइल फोन्स जा रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्ट किसने किया था? मिस्टर बी ने। उसने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे हैं, तो मिस्टर बी विल बी considered as to be receiver of goods and place of supply will be Delhi. Over here, two different states are involved. Place of supply is Delhi and the supplier is in Nasik. So it will be considered as interstate supply and IGST will be applicable. Let's take one more example. Over here, Mr. A of Nasik is a supplier. Mr. B of Mumbai is a purchaser. यहाँ पर मिस्टर बी मिस्टर ए से गुड्स परचेज करता है और फिर मिस्टर बी मिस्टर सी को गुड्स सेल ऑफ कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टर बी ने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे और फिर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को गुड्स बेच दिए, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इंस्ट्रक्ट करा कि वो डिलीवरी मिस्टर सी को दे दे। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने डिलीवरी मिस्टर सी को दे दी, तो यहाँ पर मिस्टर बी की इंस्ट्रक्शन पे मिस्टर ए ने मिस्टर सी को डिलीवरी दी है, तो मिस्टर बी विल बी कंसिडर एज अ डीम्ड टू बी रिसीवर। दैट मीन्स जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यहाँ मुंबई माना जाएगा। मिस्टर ए इज इन नासिक, बोथ आर इन द सेम स्टेट, सो इट विल बी कंसिडर एज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड CGST एंड SGST विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए लखनऊ में है, मिस्टर बी आगरा में है एंड मिस्टर सी आपका दिल्ली में है। मिस्टर सी प्रिंसिपल है, मिस्टर बी एजेंट है। मिस्टर बी जो एजेंट है वो मिस्टर ए को ऑर्डर करता है कि वो गुड्स मिस्टर सी जो प्रिंसिपल है उसके पास पहुंचा दे। यहाँ पर भी बी के इंस्ट्रक्शन पे मिस्टर ए ने मिस्टर सी को गुड्स पहुंचाए हैं, तो Mr. B will be considered as the deemed to be the receiver and the place of Mr. B will be considered as a place of supply. So place of supply is Agra and supplier is in Lucknow. Both are in the same state, Uttar Pradesh. So it will be considered as intrastate supply and CGST and SGST will be applicable. Let's take one more example. Mr. A of Delhi is a supplier. Mr. B of Sonipat is a purchaser. यहाँ पर मिस्टर बी ने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे। सोनीपत में मिस्टर बी का हेड ऑफिस है। मिस्टर बी मिस्टर ए को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मिस्टर बी का जो ब्रांच ऑफिस है जयपुर में वहां पर गुड्स डिलीवर कर दे। तो यहाँ पर आपका मिस्टर बी के इंस्ट्रक्शन पे मिस्टर ए ने जयपुर में गुड्स डिलीवर करें। सो ओवर हेयर अगेन मिस्टर बी विल बी कंसिडर एज डीम्ड टू बी रिसीवर and Sonipat will be considered as a place of supply. Sonipat is in Haryana. Mr. A supplier is in Delhi, so it will be considered as interstate supply and IGST will be applicable. Next is when the supply does not involve movement of goods. यहाँ पर supplier recipient को goods बेच रहा है लेकिन वहां पे goods move नहीं हो रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ओवर हेयर लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स जहां पर भी सप्लायर रिसिपिएंट को डिलीवरी देगा उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ओवर हेयर। यहाँ पे देखो आप, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली परचेज्ड ऑफिस इन गुड़गांव अलोंग विद द फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ गुड़गांव। मिस्टर ए दिल्ली में है, उसने ऑफिस खरीदा है गुड़गांव के अंदर। ऑफिस मतलब उसने बिल्डिंग खरीदी है गुड़गांव के अंदर
जिस बिल्डिंग में उसने along with फर्नीचर खरीदा है, मतलब वहां पे उसने बिल्डिंग के साथ फर्नीचर भी खरीदा है। बिल्डिंग हमारा जीएसटी के परव्यू से बाहर है, लेकिन फर्नीचर हमारा गुड्स के अंदर आता है। और जब यहाँ पे गुड्स मीन्स फर्नीचर, यहाँ पर मिस्टर ए जब भी बिल्डिंग खरीद रहा है तो उसके साथ फर्नीचर भी मिला है। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, तो यहाँ पर डिलीवरी फर्नीचर की गुड़गांव में हुई है, देन गुड़गांव विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर डिलीवरी मिस्टर बी जो सप्लायर है वो भी गुड़गांव का है, डिलीवरी भी गुड़गांव में हुई है, so it will be considered as a intra-state supply and CGST and SGST will be applicable. Next example is, suppose करो मिस्टर ए दिल्ली का है, वो लीज पे मशीन्स देता है, उसने मिस्टर बी ऑफ नोएडा को लीज पे मशीन दी। मिस्टर बी ऑफ नोएडा ने लीज पे मशीन ली, यूज करा और कुछ मंथ्स के बाद मिस्टर ए से वो मशीन्स खरीद ली। दैट मीन्स यहाँ पर जो मशीन्स थी वो पहले से ही नोएडा में थी और मिस्टर बी ने वो ही मशीन्स खरीदी हैं। तो अगेन मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, लेकिन डिलीवरी कहाँ पर हुई है? नोएडा में। सो नोएडा विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर इज फ्रॉम दिल्ली, so it will be considered as interstate supply and IGST will be applicable. Let's take one more example. Now suppose करो मिस्टर ए जो दिल्ली में है, उनका शोरूम है दिल्ली में, वो कस्टमर को अपने शोरूम में गुड्स सेल कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी शोरूम में जाते हो और गुड्स परचेज करते हो तो आपको डिलीवरी उसी प्लेस से मिलती है। दैट मीन्स द शोरूम इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर is also in that state and the place of supply delivery is also in that state, so it will be considered as intra-state supply and CGST and SGST will be applicable. यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप शोरूम में डिलीवरी का केस आता है तो अगर आपकी जो सेल है, सप्लायर अगर 50,000 तक की सेल करता है तब तो इंट्रास्टेट सप्लाई मानी जाती है, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा की सेल होती है तो सप्लायर रिसिपिएंट से पूछता है कि उसको प्रोडक्ट कहाँ पे लेके जाना है। तो उस केस में जहां पर भी प्रोडक्ट लेके जाया जाता है उसके हिसाब से आपकी ये इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट देखा जाता है। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली है, वो एक कार डीलर है, उसका एक शोरूम दिल्ली में है और सेकंड शोरूम उसका जयपुर में है। मिस्टर बी जयपुर का रेजिडेंट है, वो दिल्ली आता है घूमने के लिए और वो दिल्ली के शोरूम से कार खरीद लेता है, लेकिन वो दिल्ली के शोरूम से डिलीवरी नहीं लेता, वो जयपुर के शोरूम से डिलीवरी लेता है। सो इन दिस केस जयपुर विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इट विल बी कंसिडर एज अ इंटरस्टेट सेल, क्योंकि यहाँ सप्लायर दिल्ली के शोरूम है और सप्लाई हो रही है, आपकी डिलीवरी मिल रही है जयपुर के शोरूम से। दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है, सो इट विल बी कंसिडर एज इंटरस्टेट सप्लाई एंड IGST विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट केस इज व्हेन द सप्लाई इन्वॉल्व्स इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। अगर आपकी इंस्टॉलेशन या असेंबली ऑफ गुड्स का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर एज अ प्लेस वेयर आइदर द इंस्टॉलेशन इज डन और द गुड्स आर बीइंग असेंबल्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए ऑफ दिल्ली परचेजेस अ स्प्लिट AC फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ गुड़गांव और उसने मिस्टर बी ऑफ गुड़गांव को इंस्ट्रक्शन दी कि वो मिस्टर ए के गुड़गांव ऑफिस में जाकर स्प्लिट AC इंस्टॉल कर दे। तो यहाँ पे गुड़गांव विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुड़गांव and the supplier that is Mr. B is also in Gurgaon, so it will be considered as intrastate supply and CGST and SGST will be applicable. Next example is, suppose करो Mr. A जो दिल्ली के हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिस्टर बी ऑफ हरियाणा को टू असेंबल अ पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। यहाँ पर मिस्टर बी जो हरियाणा के हैं वो महाराष्ट्र में जाके असेंबल करते हैं गुड्स और पावर प्लांट को इंस्टॉल कर देते हैं। So the assembling and installation is done in Maharashtra. So Maharashtra will be considered as a place of supply. यहाँ पे supplier Mr. B है
वो हरियाणा के हैं, सो इट विल बी कंसिडर एज अ इंटर स्टेट सप्लाई एंड IGST विल बी एप्लीकेबल. नाउ वन मोर एग्जाम्पल ओवर है. सपोज करो मिस्टर एक्स दिल्ली के हैं और उनका एक प्लेस, उनकी एक फैक्ट्री जोधपुर में है. वो मिस्टर बी ऑफ हरियाणा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो असेंबल करें और इंस्टॉल करें मोबाइल टावर उनकी फैक्ट्री जो जोधपुर में है वहां पर. मिस्टर बी जोधपुर की फैक्ट्री में जाकर मोबाइल टावर इंस्टॉल कर देते हैं. सो ओवर हेयर the assembly and installation is done in Jodhpur and supplier is in Haryana. So Jodhpur will be considered as a place of supply and place of supplier is Haryana. So it will be considered as interstate supply and IGST will be applicable. Next case is when goods supplied on board a conveyance. Board a conveyance means जब भी goods किसी conveyance पे supply होते हैं तो उसको बोर्ड अ कन्वेंस बोलते हैं. यहाँ पर कन्वेंस का मतलब है या तो कार, ट्रेन, प्लेन या फिर कोई भी वेसल. अगर आप किसी भी कन्वेंस पे गुड्स सेल करते हो या आपको गुड्स मिलते हैं, सो इन दैट केस वेयर द गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो मिस्टर ए जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली जोधपुर ट्रेन में चढ़ते हैं विद ऑल द गुड्स. मिस्टर ए एक हॉकर है जो ट्रेन में घूम घूम के सामान सेल ऑफ करता है. जब भी वो ट्रेन में चढ़ते हैं तो किसी भी प्लेस पे वो सामान सेल ऑफ कर देते हैं. यहाँ पर मिस्टर बी ऑफ जयपुर जब ट्रेन जयपुर में पहुंची तो वहां पे उसने मिस्टर बी को सामान सेल ऑफ करा. So over here, since the train is moving from Delhi till Jodhpur, the train must have crossed various states over here. जब ट्रेन ने इतनी सारी स्टेट्स क्रॉस करी हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे. दिल्ली के बाद ट्रेन हरियाणा गई हरियाणा, उसके बाद जयपुर गई जयपुर. तो यहाँ पर रूल्स हमारे हैं कि जहां से भी सामान आपका ट्रेन कन्वेंस के ऊपर बोर्ड होता है, चढ़ता है, उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. यहाँ पर मिस्टर ए दिल्ली से ट्रेन को उन्होंने बोर्ड किया था, सो दिल्ली विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. या मिस्टर ए भी दिल्ली के हैं और उन्होंने ट्रेन को दिल्ली में ही बोर्ड किया था, सो इट विल बी कंसिडर एज इंटरस्टेट सप्लाई एंड CGST एंड SGST विल बी एप्लीकेबल. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर ए जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है उनका केटरिंग बिजनेस है और वो ट्रेन में फूड सप्लाई करते हैं. उन्होंने मंडोर एक्सप्रेस जो दिल्ली से लेकर जोधपुर तक जाती है, जैसलमेर तक जाती है, उसके अंदर उन्होंने फूड पैकेट सप्लाई करे. अब जहां से भी ये फूड पैकेट ट्रेन पे बोर्ड होंगे उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे. हमारे इस एग्जाम्पल में जो फूड पैकेट्स हैं वो मिस्टर ए दिल्ली स्टेशन से बोर्ड करता है. सो दिल्ली विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. Supplier is also in Delhi. Place of supply is also in Delhi. So it will be considered as intrastate supply and CGST and SGST will be applicable. अगर इसी सेम एग्जाम्पल में जो मिस्टर ए हैं वो दिल्ली स्टेशन से पैकेट्स ना बोर्ड करके जयपुर स्टेशन से बोर्ड करते, so जयपुर विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ पे सप्लायर मिस्टर ए दिल्ली के हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर का है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई एंड IGST विल बी एप्लीकेबल. अब हम बात करते हैं व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11. जब भी हम आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे हम या तो गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया की बात करेंगे या गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. इंपोर्टेड इंडिया का मतलब है हम गुड्स बाहर की किसी कंट्री से खरीद रहे हैं. दैट मीन्स सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है और रिसिपिएंट विद इन इंडिया का है. एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया का मतलब होता है सप्लायर इंडिया का है और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का है. सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया. जब भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर.
जिस भी स्टेट में इंपोर्टर है उस स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और इंपोर्टेड गुड्स में हमें पता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और जो रिसिपिएंट होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए जो इंडिया के हैं वो गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ यूएसए। यहाँ पर सप्लायर यूएसए का है और परचेजर इंडिया का है। तो गुड्स इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया and over here IGST will be applicable. Mr. A is to pay tax to the government under reverse charge mechanism. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए इंडिया में है, वो यूएसए के एक पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के एक पर्सन को गुड्स सेल ऑफ कर देते हैं। दैट मीन्स जो इंडिया का पर्सन है उसने यूएसए के पर्सन से गुड्स परचेज करे और ऑस्ट्रेलिया के पर्सन को गुड्स बेच दिए। यहाँ पर गुड्स इंडिया नहीं आए, सो ऑन सच टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ पे गुड्स सीधा यूएसए से ऑस्ट्रेलिया चले गए, सो जीएसटी इज नॉट कंसिडर्ड ओवर हेयर। नाउ टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जब भी इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, जिस भी कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप इंडिया में हो और आप यूएसए में गुड्स बेच रहे हो तो यूएसए विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करें तो मोस्टली इंडिया में एक्सपोर्टेड गुड्स पे टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आइटम्स ऐसी हैं जहां पर टैक्स एप्लीकेबल है, दैट मीन्स जहां पर जीएसटी लगता है। With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.